Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language instructor and the trainer. Once again, I have been right here with you guys. You are my YouTube family and you guys are enjoying all my videos. Today exactly I have brought to you another topic. Previous topic exactly it was all about different kind of things like parts of speech and so many and all. So today I have to discuss another topic. It's going to be very informative for rest of you students who are learning English. Especially the English language is considered to be the most important for rest of the student who want to learn. So today I have to discuss the topic apostrophe. Apostrophe is the most important topic. I hope you are going to take this lecture very seriously, because most of the students they have have problem in this topic while being learned. So I am going to sort out your problem, but you have to watch my video till the end, and don't forget to subscribe me and like me and share me with everybody, with every friend of you, with family member, so as you could be able to get my further notification as well. So keep watching me and keep watching my videos and keep enjoying all the things which I am imparting you. So today I have brought to you another topic. Exactly I have told you about the topic, what topic I have brought to you. जो topic मैं आपके लिए लाया हूँ ये भी बड़ा essential है और मुझे उम्मीद है कि आप सारे टॉपिक्स एंजॉय कर रहे हैं। और इंग्लिश में बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हर टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। सो टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट अपॉस्ट्रॉफी। एंड अपॉस्ट्रॉफी जो है वो अगर देखा जाए तो उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। एंड इवन आई हैव सीन सच पीपल हु आर वेरी गुड एट इंग्लिश. They are speaking outstanding English, but they they have a tendency, they make plenty of mistake, even they are making blunders. So we have to cover up those of the blunder which the English learner and those people who are speaking English, they are making some mistakes. So we have to sort such mistake out. So I hope all you guys are going to watch my video very seriously, and you are going to pay heed on my video. So here we go. I should start the topic. What is the apostrophe? Apostrophe होता क्या है, इसका हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी बात ये होगी कि इतना आसान टॉपिक है लेकिन इसमें स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, वजह क्या है उसकी, आपके सामने वो फैक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं लाना चाहूँगा। और इफ़ यू फील लाइक लर्निंग सच थिंग्स, तो मैं भी आपको यकीनन मेरा भी दिल करेगा कि मैं आपको उसके बारे में सिखाऊं। तो मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप जो है वो मेरी वीडियो को जो है वो देखें, इसे शेयर भी करें, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है विच एग्जैक्टली आई हैव प्रेजेंटेड, जो मैंने पेश किया आपके सामने, उसको आगे तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर आप मेरी बात को आगे तक पहुंचाते हैं तो उसको कहने का मकसद ये है कि आप बहुत कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ इस माशरे में करते हैं। क्योंकि इंग्लिश लर्निंग बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश लैंग्वेज is said to be the international language. That's why it must be taken very importantly. इसको बड़ा अहमियत के साथ लिया जाना चाहिए। और कहने का मकसद यहाँ पर मेरा ये भी बनता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ वैरायटी दी जाए। और अब तक जितने भी टॉपिक मैंने कवर अप किए हैं उसमें मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं अपने स्टूडेंट को, अपने व्यूवर्स को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको जो है कुछ अलग टॉपिक्स दूँ। और आज तक मैंने जो है मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ कि द वे आई हैव गिवन यू all the topics, the way I have imparted you, the way I have told you about the English language, कि बहुत सी चीज़ें इसमें बहुत रेलिवेंट मैंने बताई हैं आपको, जिसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से लोगों की जो है वो मिस्टेक्स को भी दुरुस्त करने की मैंने मॉडिफिकेशन की भी कोशिश की है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टिफिकेशन हो जाए। सो आई एग्जैक्टली हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, मैंने ये इनिशिएटिव भी लिया है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अपॉस्ट्रॉफी का। बड़ा अहम टॉपिक है, इसको अगर हम बहुत सीरियसली ले लें तो हमारी इंग्लिश में कुछ बेहतरी आ जाएगी और हम बेहतर अंदाज से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश कर सकेंगे।
तो अपॉस्ट्रॉफी में आज मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी है। आपको करना है क्या है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ ये अली की किताब है, ये देखें उर्दू में बोला है मैंने, अब इसका ट्रांसलेशन क्या है, ये अली की किताब है, ठीक है ना। अब मैं इस तरह से बोलूँगा कि दिस इज़ अलीज बुक, ये अली की किताब है, दिस इज़ अलीज बुक। अब देखें इतना सिंपल सा ट्रांसलेशन था। अच्छा, अलीज में अली के नाम के ALI के बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगा के उसमें एस का इजाफा कर दिया। तो कितना सिंपल सा टॉपिक है, कितना इजी टॉपिक है, इसमें भी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छा, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, या तो राइटिंग में मिस्टेक करेंगे, अली की जगह पे एस लिख देंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा, उसमें कॉमा बाकायदा ज़रा सा राइट से कॉमा लगा होता है, आप देखिएगा किताबों में लिखा हुआ भी आता है, दिस इज़ अलीज बुक, ये अली की किताब है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं बोलूं वो कार तैमूर की थी, वो कार तैमूर की थी, दैट वॉज तैमूर्स कार, दैट वॉज तैमूर्स, तैमूर्स में एस लगेगा, तैमूर्स के एंड में एस लगेगा, कॉमा लगा होगा, तैमूर, दैट वॉज तैमूर्स कार, कि वो तैमूर की कार थी। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी का मतलब यहाँ पे एस का इजाफा जो किया जा रहा है, किसी भी नाम के साथ इसका इजाफा किया जा रहा है, तो किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोई चीज़ किसी की मिल्कियत है, कि कोई चीज़ किसी की पोजेशन है, पोजेशन से मुराद आपकी मिल्कियत हो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये तो मेरी किताब है, इट इज़ माई बुक, ये तो सिंपल हो गया, इसमें एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन कहीं पे ऐसी सिचुएशन, जैसे ये वाली सिचुएशन थी कि इट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, माई का मतलब ये मेरी पोजेशन है, मेरी मिल्कियत है, लेकिन वहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि वो तैमूर की कार है, दैट इज़ तैमूर्स कार, कि वो तैमूर की कार है, और अगर ये बोलूँ कि वो तैमूर की कार थी, दैट वॉज तैमूर्स कार, तो यहाँ पर भी बात तो पोजीशन की ही हो रही है कि तैमूर की मिल्कियत है तो उसकी कार है, लेकिन दोनों में एक अजीब सा फर्क है। आप यहां पे देखें, इट इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है, मेरी पोजीशन है, मेरी मिल्कियत है। देखें, इंग्लिश बोलने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। एपोस्ट्रॉफी एक अलग किस्म का टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस किया, लिहाजा मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में वैरायटी है, और इंग्लिश सिचुएशनल ज़बान कहलाती है, ये सिचुएशनल होती है, ये नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट जो उर्दू है वही इंग्लिश है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बड़ा फ़र्क है। अब देखिए कितने तरीके आपके सामने आ गए। एपोस्ट्रॉफी को लेकर मैंने टॉपिक क्या लिया, एपोस्ट्रॉफी लिया, और उसको लेकर मैंने आपको 3 तरीके बताए। जैसे मैंने ये बोला इट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है ना, वो इमरान का घर है, वो इमरान का घर है, दैट इज इमरान्स हाउस, दैट इज इमरान्स हाउस। अब ये जो एस लग रहा है यानी इमरान का, इमरान का यानी उसकी मिल्कियत है, उसकी पोजीशन है, इमरान का घर है, दैट इज इमरान्स हाउस, वो इमरान का घर है। तो कितना आसान है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बोलने के दौरान बहुत से लोगों को देखा, सो मेनी पीपल आई हैव सीन अप टिल नाउ, दे आर making mistakes while being spoken such things like apostrophe में वो गलतियां कर बैठते हैं, और even they are very good at speaking English, बहुत अच्छे होते हैं बोलने में, but they are making mistake। तो ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन सी मिस्टेक हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों से। कहते हैं ना, एक कहावत है कि कतरा कतरा दरिया बनता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये आपने सुनी होगी। तो इसी तरह इंग्लिश का एक एक छोटे से छोटा टॉपिक भी होगा ना, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। वी शुड टेक एवरी टॉपिक सीरियसली, हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगा कि जो है वो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मेरी बात आगे तक पहुँचाएँ, सो एज़ यू कुड बी एबल टू लर्न फर्दर। एंड उसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।